जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. So this is exploring the concepts, and I'm here to tell you something about it, my next lecture, and that is about kingdom planting. This is chapter number 8, and today's topic is starting from the division of the kingdom planting. And the major divisions, you know that all of the plant kingdom, the whole of the plant kingdom is by the way divided into two groups: non-vascular plants and vascular plants. Non-vascular plants, including bryophytes, and vascular plants are including tracheophyte. Means vascular. Maybe you have heard that word vascular. The word vascular means vascular bundles. Means xylem and phloem. Means these are the plants that do not have vascular bundles in them. And vascular plants means they have vascular bundles. Means xylem and phloem are present in them. And by saying this, that having or having not having the vascular bundles, you can imagine the size of the plant as well. As far as non-vascular are concerned, they are very small plants, right? Obviously they do not have long xylem to drop the water to the top of the plants, so they must have a very small size, because they totally depend on the diffusion for the transport of water and food. So vascular bundles are so vascular non-vascular plants are the bryophytes, and vascular plants are the tracheophytes. Then tracheophytes are further divided into two groups. One is seedless vascular plants and seeded vascular plants, right? That seedless plant, let me take that pointer. Yeah, this is seedless plants, pteridophytes, right? Pteridophytes are the examples of among them is fern, and these are the plants. They have vascular bundles. They are the bigger plants, but they do not produce seeds, right? I'm sorry. Then this is the plants with seeds, spermatophytes. These are the plant that have vascular bundle, and they can produce seeds as well. And there are two different types of seeded plants. One of them is gymnosperms, another is angiosperms, right? Gymnosperms, naked seeds, have the naked seeds. I will show you later in the lectures. And these are the plants, angiosperms, that have enclosed seeds. Like for example, you can take the example of an apple, and on cutting an apple, you found the seeds inside it. So this is what is called as what is an example of angiosperm, by the way, in which the seeds are present inside the plant body. Okay, let's have another bigger, elaborated, you can say, the divisions. So as far as this year syllabus is concerned, so we are just need to know the names of the plants. This is seedless plants, bryophytes, non-vascular. These are non-vascular, in which there are three major examples are there. One of them is liverwort, then hornwort, and mosses. As far as vascular plants are concerned, so in which two examples are there. One of them are seedless vascular, and then is non sorry seeded vascular vascular plants. As far as seedless are concerned, okay. So in the seedless plants, in seedless plants, there are certain examples: mosses, club mosses, whisk ferns, horsetails, are the examples of seedless plants. And then seeded gymnosperms and angiosperms, as I have already told you. Then, starting from the today's topic, that is non-vascular plants. So, non-vascular plants are the plants that do not have vascular bundles in them. You cannot differentiate them into proper root systems and leaves. And examples are liverworts, hornworts, and mosses. These are low-growing plants. These are producing the spores, and they need moist habitat. And they are also called as amphibious plants. I'm going to show you the examples of this group. First of all, I want to tell you the meaning of the word amphibious. As far as plant animals are concerned, over there we have a group called amphibians. Amphibians are the animals who have dual nature of life. Like half of the life they spend on land, and then the other half on in water. So basically they need water for the process of sexual reproduction. Same is the case with the bryophytes. They need water for their sexual reproduction. So that is why they are called as amphibious plants. They grow very close to the plant. And here is the example of the
Bryophytes. This is liverwort. This is liverwort. Another example of liverwort, Markensia. This is Markensia, by the way, and Markensia is an example of liverwort. Then this is an example of moss. Moss की बहुत खूबसूरत example है Funaria, right? This is Funaria, and then this is hornworts, right? I've already told you that there are three main types of there are three main types of क्या three main types of bryophytes: liverwort, hornwort, and mosses. And I have shown you all three examples. This kind of brick wall, by the way, आपने देखी होगी ये वॉल देखी होगी, या जमीन में ऐसी कोई जमीन देखी होगी जो बहुत गीली रहती है, तो वहां ये कुछ ग्रीन ग्रीन सा उगाता है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मॉस. ठीक है. और ये बेसिकली ग्रो वैसे वहां करते हैं जो बहुत मॉइस्ट है, या यानी कि डैम्प जिसको आप कहते हो, एंड दलदली इलाका जो नहीं होता वहाँ पीट मॉस वगैरह ग्रो करते हैं. then these are the major points of the bryophytes. Most primitive plants, first of all, they are the ancient plants. They are called as lower plants, found in moist shady areas. No vascular system, ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है. नो xylem, no phloem. The plant size is very small as there is no vascular tissues. No true roots, stems and leaves. रूट्स की जगह राइजोइड्स हैं. स्टेम में अजीब सा कुछ है, स्टेम है मगर खैर ग्रीन कलर की स्टेम जरूर है. और लीफ लाइक कोई चीज़ है मगर वो लीव्स नहीं है. लीव्स आप उन्हें तभी कहोगे, या स्टेम आप उन्हें तभी कहोगे जब उनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे. They need water for their reproduction. That is why I've told you they are called as amphibious plants. Then they reproduces using spores. Once again, पीछे भी सारे ग्रुप्स में spores produce हो रहे थे. It's not new for you. So plants में भी स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसका वाटर स्टोर रहता है अंटिल इट गॉट सम स्पेस जिस जहाँ वो प्रॉपरली जर्मिनेट कर पाए. मोस्ट कॉमन एग्जांपल में मॉसेस है. मॉसेस तो हर जगह कहीं भी आसानी से ग्रो कर जाते हैं. देन अदर फीचर्स आर डैम एंड जेडी प्लेसेस are they growing areas. They follow heterologous haplodiplotonic type of life cycle. Means two different types of life cycles हैं. इसके अंदर haploid life cycle भी है और diploid life cycle भी है. Means there is alternation of generation. That is the very first group of plant. Still they have two different types of life cycles. They alter between gametophyte and sporophyte generation, in which gametophyte generation is dominant and sporophyte generation is recessive. And जो gametophyte है वो कुछ इसमें कुछ leaf like भी है और इसमें कुछ stem like भी है. Okay, now in order to discuss the the alternation of generation, I'm going to show you this life cycle of Funaria. This is the life cycle of Funaria. Please be attentive. Starting from this gamete. Now before starting the cycle, I want to tell you some terms. आपने पहले भी नाइन्थ में क्या ये terms की हुई हैं. Sporophyte generation, right? Sporophyte generation is diploid. Sporophyte generation is diploid generation, ठीक है. और किसी भी diploid generation में meiosis possible है. Haploid generation में meiosis possible ही नहीं है, ठीक है. अब डिप्लॉयड जनरेशन में मियोसिस पॉसिबल है, मियोसिस होगी और स्पोर्स बनेंगे. ठीक है. मियोसिस का रिजल्ट है स्पोर्स. मियोसिस का रिजल्ट है स्पोर्स. स्पोर्स बन गए. फिर स्पोर्स कहीं भी गिरे, उनसे कोई मेल स्पोर्स हैं कोई फीमेल स्पोर्स हैं, वो स्पोर्स कहीं भी गिरे और जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन उनसे निकल आई. ठीक है. मेल गेमेट जनरेशन भी निकल आई और फीमेल भी निकल आई. अब आपको पता है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन थी वो जो सॉरी स्पोर्स थे वो हैप्लॉइड थे. जो स्पोर्स थे वो चूंकि हैप्लॉइड थे तो जाहिर बात है गेमेटोफाइट जनरेशन कैसी है, ये भी हैप्लॉइड है. प्लांट्स आर द ग्रुप इन विच गेमीट्स आर प्रोड्यूस थ्रू माइटोसिस. प्लांट्स आर द ग्रुप इन विच गेमीट्स आर प्रोड्यूस थ्रू माइटोसिस. ठीक है. अब इसमें भी यही हो रहा है. ये है ही हैप्लॉइड, इसमें तो मियोसिस पॉसिबल है ही नहीं. हैप्लॉइड ही है तो मियोसिस पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली अब इसके ऊपर आर्चिगोनियम डेवलप हो जाएगा और इसके अंदर एंथ्रीडियम डेवलप हो जाएगा. ठीक है ना. आर्चिगोनियम फीमेल सिस्टम से रिलेटेड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंसर्न है. ठीक हो गया. अब ये देख लें आपके ये एंथ्रीडियल इसका हेड है, मीन्स कि जिसके अंदर पोलन्स डेवलप हो रहे हैं, और ये एग है जो इसके ऊपर डेवलप हो रहा है. ठीक हो गया. अब यहाँ से स्पर्म्स ट्रेवल करके इसके अंदर फॉल करेंगे. ठीक है. यहाँ से मतलब कि स्पर्म्स ट्रेवल करेंगे और यहाँ इसके अंदर फॉल कर जाएंगे.
अब यहाँ क्या बनना चाहिए, यहाँ जाइगोट बनना चाहिए, जैसे इस फिगर में नजर आ रहा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गई है, यानी कि ये जो चीज ग्रो कर रही है, दिस इज ऑन द टॉप ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक हो गया। फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर ये ग्रो कर रहा है, एंड ग्रो करते करते ऊपर ये एक ब्राउन से कलर की चीज डेवलप होगी। नाउ व्हाट डू यू थिंक, दिस ब्राउन कलर्ड चीज जो है ये, क्या ये अपने लिए खाना खुद बना सकती है? नो, क्योंकि ये ब्राउन कलर की है, और ये ग्रीन कलर की होती तो हम समझते, मगर ये ब्राउन कलर की है, और ये टोटली डिपेंडेंट है ऑन नीचे जो है गेमीटोफाइट, यानी कि आप खुद खूबसूरती देखें नेचर की, कि नीचे गेमीटोफाइट है जो कि हैप्लॉइड है, और उसके टॉप पर डिप्लॉइड जनरेशन डेवलप हो गई है। जो डिप्लॉइड जनरेशन है वो शॉर्ट लिव्ड है, डिपेंडेंट है, रिसेसिव है, ठीक है। और जो उसकी गेमेटोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट है, और सारी लाइफ उसी पे ही गुजरती है इस ग्रुप में। ब्रायोफाइट्स में याद रखिएगा, गेमेटोफाइट इज डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइट इज रिसेसिव, while in rest of the groups sporophyte is dominant and gametophyte is recessive। ये स्पोरोफाइट है, ये जब इसके अंदर स्पोर्स बन जाते हैं, आई मीन मियोसिस हो जाती है, जब स्पोर्स बन जाते हैं, क्लेप्ट्रा इसका हेड जो होता है, लिड बाय द वे, वो जब टूट जाता है, स्पोर्स निकलते हैं, तो फिर ये वाली जो स्पोरोफाइट है वो भी ड्राई होके गिर जाती है। ये फिगर मैंने सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन की है ताकि मैं आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रॉपरली दिखा सकूँ, कि ऊपर वाला फेज सारा डिप्लॉयड है और नीचे वाला फेज सारा हैप्लॉयड है। एक दफ़ा नेचर ने ये क्यों किया है, ताकि ये उस दौर की बात है जब दुनिया में बहुत ज़्यादा पौधे लगाने थे, तो हैप्लॉइड के थ्रू, सॉरी, गेमेटोफाइट जनरेशन के थ्रू नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो इसलिए ये ऑल्टरनेट करते थे पौधे, तब एक दफ़ा सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते थे और एक दफ़ा ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते थे, ताकि नंबर ऑफ प्लांट्स को बढ़ाया जा सके। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी थी ताकि वेरिएशन लाई जा सके और प्लांट को मोस्ट अडेप्टिव बनाया जा सके। और आज जो पौधा आपको ज़्यादातर नज़र आता है वो सारे मॉडर्न प्लांट्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये देख लो आप, ये गेमिटोफाइट है, ये नीचे राइजोइड्स हैं, गेमिटोफाइट है, स्टेम और लीफ कोई चीज एक चीज, और जी इसके ऊपर सीटा, ये इसका क्लेप्ट्रा, ये इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन है, ये इसकी गेमिटोफाइट जनरेशन है। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ओके, नेक्स्ट इज सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स, इसके भी कैरेक्टर्स देखने हैं। इनकी दो बातें तो हमें बताएंगे, सीडलेस हैं एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा वेस्कुलर भी है, मीन्स वेस्कुलर टिश्यूज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, नो सीड्स, स्टिल हैव स्पोर्स, यानी कि इसमें भी स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। बिगर हैं, थिकर हैं, मॉस से बड़े पौधे हैं ये, ऑब्वियसली। और फर्न्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप। अच्छा, वेस्कुलर टिश्यूज हैं, लीव्स आ गए हैं, वैक्सीक्यूटिकल आ गई है। इससे पिछला जो ग्रुप था उसमें वैक्सीक्यूटिकल खास प्रेजेंट नहीं थी, थोड़ी बहुत थी भी, लेकिन ज़्यादातर एब्सेंट है उस ग्रुप में। रीज़न क्या था इसका, क्योंकि वो तो रहते ही पानी के पास है, तो उन्हें नॉर्मली पानी की कमी नहीं होती। लेकिन एज पर एज सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स आर कंसर्न, दे दे हैव टू कंजर्व द वाटर, सो दे हैव वैक्सीक्यूटिकल अराउंड देम एंड दे हैव स्टोमेटा एज वेल। स्टोमेटा तो किसी न किसी फॉर्म में उनमें भी प्रेजेंट थे जो ब्राइफाइट्स थे। ओके, फिर इसके अलावा ये भी डिपेंड करते हैं नरिश में, वाटर पे डिपेंड करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। देन in this group, alternation of generation is there obviously, and sporophyte is dominant and can grow independently of gametophyte, ठीक हो गया। और गेमिटोफाइट भी इसमें इंडिपेंडेंट होती है, गेमिटोफाइट भी इसके ऊपर इसकी स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करती है। ये पहला ग्रुप है जिसमें फर्स्ट टाइम लीव्स ओरिजिनेट हुए। मैं आपको सारे ग्रुप थोड़े थोड़े से दिखाना चाह रही हूँ। ये एक पहले लाइफ साइकिल देख लें, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी नजर आ जाएगी इसमें आपको। ये लीव्स हैं इसके, ये एक फॉर्न है, लीव्स हैं, और लीव्स पे देखें आप, ये जो गोले गोले आपको नजर आ रहे हैं, ये दिस इज द सोरस क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, ठीक हो गया। यानी कि इसकी जो स्पोरेंजिया है वो इनके लीव्स पर अटैच्ड है, राइट। ये बड़ा स्पेशल केस था, फ्रॉन्स इन्हें हम बोलते हैं, लेकिन आपके सही है इस साल कोर्स में नहीं है तो एंजॉय करें। और ये जब मेच्योर हो जाते हैं ये फिर बर्स्ट कर जाते हैं और स्पोर्स गिरते हैं। स्पोर्स जहाँ गिरेंगे तो ये एक चीज़ डेवलप हो जाएगी, हार्ट शेप्ड। ये हार्ट शेप्ड है, ये ग्रीन कलर्ड है, दिस इज गेमिटोफाइट, दिस इज हैप्लॉइड, इसका हर सेल हैप्लॉइड है, लेकिन इसके अंदर दो तरह की डिफ्रेंशिएशन हुई हुई है। ये जो इसका नॉच्ड रीजन है दैट इज गोइंग टू डेवलप इनटू फीमेल पार्ट, एंड ये जो इसका पॉइंटेड रीजन है दैट इज गोइंग टू डेवलप इनटू मेल पार्ट। आर्ची थ्रीडियम, ये आर्चिगोनियम है, ये एंथ्रीडियम है। यहाँ से स्पर्म्स उड़ के इसमें चले जाएंगे, जैसे कि यहाँ नज़र भी आ रहा है, ये देख रहे हैं स्पर्म्स यहाँ से निकल कर इसमें चले गए हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट है नॉच में। और ये चीज़ अंदर जाइगोट बन गया और एम्ब्रियो बन गया,
और गेमेटोफाइट के ऊपर ये नया प्लांट डेवलप हो गया. वंस अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एवरी प्लांट. और इसके अंदर जिसकी गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो ग्रीन कलर की है और वो हैप्लॉइड है एज यूजुअल. और बाद में ये ख़त्म हो जाएगी जब ये पौधा ऊपर से ग्रो कर जाएगा. So over here we have many examples of the vascular plants and which are seedless as well. This is the very first example. Whisk for ये वाहिद ग्रुप है जिसमें फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुई थी अंदर जाइलम वेसल्स. और ये वो ग्रुप है जो लीफलेस ग्रुप है. हर ब्रांच आप देखें डाइकोटोमस है और ये लीफलेस है, मगर स्टेम इसकी कैसी है, ग्रीन कलर की है. इस एग्जाम्पल में देखें, इस तस्वीर में देखें, स्टेम्स जो है वो ग्रीन कलर की हैं और ये येलो कलर के इसके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो कर रही हैं. और यहाँ देखिए आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस फिगर में. ये दिस इज डाइकोटोमस ब्रांचिंग. ये साइलोप्सिडा है, हाँ साइलोप्सिडा है ये. और ये एक पौधा इनका दिखाया, ये इन्होंने स्पोरेंजिया, और ये स्पोरेंजिया सेपरेट करके भी दिखा दिया. थ्री कस्प की तरह ये एक ग्रो करता है स्पोरेंजिया. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है लाइकोप्सिडा. लाइकोप्सिडा बहुत 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 स्पेशल पौधा है. ज़्यादा स्पेशलिटीज की है कि फ़र्स्ट टाइम लीव्स डेवलप हुए. इस ग्रुप में फ़र्स्ट टाइम लीव्स डेवलप हुए थे. स्पोरेंजियोफोर, सॉरी स्पोरोफिल्स, ये पहली बार डेवलप हुए थे इसके अंदर. और स्पोरोफिल्स के साथ अंदर स्पोरेंजिया भी अटैच हुआ करता था. स्ट्रोबिलस ये है लाइकोप्सिडा जिसमें पहली दफ़ा डेवलप हुआ. ये हॉर्स टेल है. हॉर्सटेल बहुत स्पेशल प्लांट है. ये दोनों इसकी हॉर्सटेल की एग्जांपल्स हैं. इसमें लीव्स जो हैं वो नीडल शेप्ड हैं, वर्ल्स पर अटैच होते थे. और स्ट्रोबुलस जो है इसका टॉप पे, मतलब वही जो स्पोरेंजिया है वो टॉप पर है. क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया इनके अंदर स्टोर होते हैं. पिछले लाइक ऑप्सिडा में भी ऊपर स्ट्रोबुलस था, इसमें भी है. दोनों में जिसके स्पोरेंजिया वो एक जगह पे ऊपर स्टोर हो जाते हैं. So this is the group called seedless vascular plants. ठीक हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इज एवोल्यूशन ऑफ लीफ, में कि मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी. अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट. एंड आई थैंक यू ऑल फॉर द पेशेंस लिसनिंग. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.